What's up friends, welcome you all to my channel Financial Prudent. As you see on the screen, today we are trying to analyze the Bandhan Bank Q4 result which was declared yesterday after market hour. So हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि Q4 रिजल्ट एक अपॉर्चुनिटी है या क्राइसिस की तरफ इंडिकेट कर रहा है. We will also try to analyze the impact of Q4 result on the share price of Bandhan Bank when market opens tomorrow. So without wasting much of the time, we will directly move to the BSE website and see the result. So आप लोग के मैंने BSE का वेबसाइट खोल कर रखा है. As you see, to access the result, you have to come to the page, and here you have to click the corporate. The corporate announcement will get open. This will show the latest corporate announcement. You have to click on this corporate announcement button. Thereafter, you have to select equity. You have to select the range. जैसे कल ये डिक्लेयर रिजल्ट हुआ था तो हम 8th में सेलेक्ट करेंगे एंड टू डेट आज का सेलेक्ट करेंगे. यू हैव टू सेलेक्ट द कैटेगरी. सो कैटेगरी वी हैव टू सेलेक्ट रिजल्ट इन दिस कैटेगरी, द ड्रॉप डाउन. देयर आफ्टर वी हैव टू पंच द नेम ऑफ द सिक्योरिटी विच वी आर ट्राइंग टू पिक द रिजल्ट फॉर, एंड देयर यू हैव टू सबमिट द क्वेरी. द पेज विल कम. As you see here, the board recommended dividend. This page has come. We will download this result. As you see on the screen, this is the latest filing by Bandhan Bank to BSE Limited. So if you see the subject of this letter, it says outcome of the board meeting held on 8th May 2021. This also goes on saying it is also giving the audited result of Q4 financial year ended March 31st, 2021. So there is also a good news for the Bandhan Bank shareholders. This letter also goes on saying further the board has also recommended a dividend of ₹1 each per share having the face value of ₹10, that is 10% from the profit of the bank for the financial year ended 31st March 2021. If we scroll down, we will see the financial result attached to this file. So if you try to analyze the result which is declared March 31st 2021, इसमें they have declared a quarterly result, that is Q&Q basis, and they have also declared the year-on-year result. आई थिंक इट इज़ नॉट विजिबल. मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँगा और ताकि ये क्लियरली विजिबल हो ऑडियंस को. सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसमें 31st मार्च 2021 के रिजल्ट्स जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं. दिस इज अनऑडिटेड रिजल्ट. ऑडिटेड रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ईयर्स द सेम क्वार्टर 31st मार्च एंडेड हैज़ बीन हाईलाइटेड हियर. And same way year on year result is being declared here. I just wanted to explain all the number indicated here in lakhs. So अगर हम year on year result पिछले साल के year on year result same duration में अगर कंपेयर करने की कोशिश करें तो this year 31st March 2021 the year on year the net interest on that is 12,52,421.19 crore. Vis-a-vis if we talk about the same quarter previous year, it was 10,88,549.33 crores. If we scroll down further, there are various parameters which is given in this, like they have given total income, total expenditures, operating profit before provisioning. You can compare with each other here. Then they have also given the net profit for the period. They have indicated the valuation ratios like gross NPA, net NPA. If you further scroll down, the various other details has been given in this result. So for purpose of understanding easily, I will take you to some other page where I will indicate the result in a concise form. सो हमने जो BSE की वेबसाइट पर रिजल्ट देखा था उसको हम अगर कंसोलिडेट करके उसका जिस्ट देखने की कोशिश करें
और मार्च 21 के रिजल्ट को सेम पीरियड पिछले साल मार्च 20 के रिजल्ट से कंपेयर करने की कोशिश करें तो उसका जिस इस प्रकार है, इंटरेस्ट अर्न, दैट इज़ आप सबको पता है बैंकिंग का बिजनेस मेनली इंटरेस्ट का बिजनेस है, एंड वॉट एवर इंटरेस्ट दे अर्न दैट इज़ द ओनली प्रॉफिट दे अर्न। सो अगर हम इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो मार्च 21 में बैंक ने 12,524.21 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है, फिर अभी सेम क्वार्टर पिछले साल 10,885.49 करोड़ का प्रॉफिट बैंक ने अर्न किया था। सो पिछले साल के मुकाबले इस साल 15.05% का गेन है प्रॉफिट अर्न में इस बैंक का। अगर हम अदर पैरामीटर्स की बात करें तो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने बैंक ने डिप्लॉय किया हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट पे मार्च 21 में बैंक ने 1174 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न किया है, विज़-अ-वी पिछले साल सेम पीरियड में 832 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न किया था, जो कि 40% पिछले साल से ज़्यादा है। सो नेट इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ आरबीआई एंड अदर इंटरेस्ट, जो इन्होंने अदर बैंक्स को लोन दिए हैं और उनसे जो इंटरेस्ट अर्न किया है, एज यू सी हियर इस साल 118.21% है, जो कि पिछले साल 163.26 था, जो कि -27.59% से कम हुआ है। जो बैंक के अदर बिजनेसेस से जो इनकम है वो यहाँ दिए हुए हैं। सो नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो बैंक के अर्निंग का, उसके बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के रिजल्ट को इस साल के रिजल्ट से, तो 7,563.35 करोड़ इस साल Q4 का नेट इंटरेस्ट इनकम है बैंक का, विज़-अ-वी पिछले साल 6,323.91 करोड़ था, जो कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 19.60% अप है। अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें बैंक की, तो ये 16.09% डाउन है। एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन मीन्स जो डिप्रिसिएशन हुआ है मार्च मंथ में, एनुअल डिप्रिसिएशन, उसको इन्होंने इंक्लूड नहीं किया हुआ है इस टोटल एक्सपेंडिचर में। हर एक इंस्टीट्यूशन मार्च महीने में, एज आप लोगों को पता होगा, मार्च महीने में अपना एनुअल डिप्रिसिएशन करता है, वो डिप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। उसके अलावा विद एक्सक्लूडिंग दोज डिप्रिसिएशन इट इज 16.10% डाउन। एम्प्लॉय कॉस्ट रिड्यूस हुआ है, जो कि एक वेलकमिंग कंटिजेंसी को प्लान करके इस बैंक ने मार्च क्वार्टर में 3,906 करोड़ का कैश एक साइड रखा हुआ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 180% मोर है। बिकॉज जैसे कि आपको पता होगा पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे एनपीएस होने के चांसेस ज़्यादा है, तो उसको रेगुलराइज करने के लिए बैंक ने 3,906 करोड़ की प्रोविजनिंग की है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो विदाउट पेइंग टैक्स Q4 2021 में बैंक ने 2,948.65 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, विज़-अ-वी पिछले साल के मुकाबले ये 27.26% कम है। टैक्स 743 करोड़ पे किया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले अगेन 27.82% कम है, बिकॉज अगर प्रॉफिट ज़्यादा कम जनरेट किया है पिछले साल के मुकाबले तो दैट्स वाई टैक्स भी कम पे किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि उनका एक्चुअली इनकम है, दैट इज़ 2,205 करोड़, जो कि पिछले साल के मुकाबले 27.06% कम है, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव फिगर है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, दैट इज़ अ नेट प्रॉफिट, जो कि सेम 27.06% पिछले साल के मुकाबले डाउन है। अगर हम फेस वैल्यू इस बैंक का 10 है। अगर हम अर्निंग पर शेयर की EPS की बात करें तो 13.69 है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 18.76 था, जो कि 27.10% कम है पिछले साल के मुकाबले। अगर हम पैट मार्जिन की बात करें तो 17.61 है, जो कि पिछले साल 27.78% था, जो कि उससे कम है। सो ये परसेंटेज में दिया हुआ है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो मैंने पहले फिगर्स में एक्सप्लेन किया था। अगर रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो ये नहीं दिया गया है यहाँ पे। अगर हम कासा रेशियो की बात करें, कासा एक इंपॉर्टेंट रेशियो है, जैसे आप लोगों को पता होगा। कासा रेशियो स्टैंड्स फॉर करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। सो बैंक बेसिकली बैंक का बिजनेस इंटरेस्ट लैंडिंग का होता है, और ये जो इनके पास डिपॉजिट्स आते हैं उसको ये सर्कुलेट करके लोगों को लोन पे पैसा देते हैं, उससे इंटरेस्ट अर्न करते हैं। सो जो करंट अकाउंट इनके पास होता है उसके ऊपर इनको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता बैंक को,
विच अभी जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उन पे 3 to 4% इंटरेस्ट इनको पे करना पड़ता है। एंड वही पैसा ये जब किसी तो दे अर्न द इंटरेस्ट ऑफ 8 to 10%। सो वो जो बीच का मार्जिन है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है इसमें एनपीए का। अगर हम परसेंटेज एनपीए की बात करें तो पिछले साल मार्च क्वार्टर में ये 0.58 था, जो कि बढ़ के 3.51 हो गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिग जंप है एनपीए के मामले में। पिछले साल के मुकाबले 2.93% बढ़ा है एनपीए। अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ये पिछले साल के मुकाबले अगेन 5.33% अप है। पिछले साल 6.81 था, इस साल 1.48 है। प्लेस एंड प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। नंबर ऑफ एटीएम्स की बात करें तो 485 एटीएम पिछले साल थे, जो कि 2 एटीएम बढ़ा है इस साल। नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करें तो इस साल अप्रॉक्सीमेटली 140 ब्रांचेस इस बैंक ने अपने ओपन किए हैं। इसके अलावा अगर और हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जो परफॉर्मा ग्रॉस एनपीए इन्होंने डिक्लेयर किया था 5,515 करोड़, एक्चुअल एनपीए 6.8% उससे ज़्यादा हुआ है, दैट इज़ 5,757 करोड़, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव टर्न हुआ है इस बैंक के लिए। इस बैंक को एडिशनली प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले 1,034 करोड़ एडिशनल प्रोविजनिंग करनी पड़ी एनपीएस को कवर करने के लिए, विच इज़ अगेन टर्न अप टू बी अ वेरी। मिस्टर चंद्रशेखर घोष ने फाइनली कहा है, इंडीड इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग ईयर टू कंप्लीट एंड नाउ द since again the growth is on track, so we will recover. So this was the analysis of Q4 result on year-on-year basis. As you all know, all financial institutions are stressed due to pandemic, due to moratorium, or due to several other intangible reasons. More of bank is further stressed due to West Bengal election, Assam election, and the promises of the loan waiver by various parties in their manifesto. Since this bank has the biggest exposure in West Bengal and Assam, so this negative result probably because of that reason. So in my mind, this bank is a strong bank with a strong leadership. This could be the opportunity, if falls further on Monday, for accumulating for the longer horizon for 3 to 4. However, this is not a direct advice to buy in this bank. You can consult your financial advisor before buying. Alright gentlemen, thank you all for watching this video. If you find this video to be informative, please do like and subscribe my channel and give your comments so that I can improve. Thank you very much.